Okay, so first of all, I welcome you all to the first lecture for Intermediate Microeconomics 2 course for your semester 4 classes. Before we start, I just want to make sure if my audio and video is clear and you are able to see the screen that is there. So let me know if there are any troubles with that. I hope everything is fine in terms of, okay. Okay, it's fine. And apart from that, so mostly the mode of communication in the course is usually Hindi and English, a mix of both the languages. But if you specifically want me to stick to English, that's also fine with me. Just let me know if you are okay with me using Hindi and English both. So Himanshu, I know, Manya, Simran, I know. Nikita, are you fine with the Hindi and English both? Or so just let me know either in the chat or you can unmute yourself and let me know if you're fine with us using bilingual mode of communication. Okay, it's fine with, okay, perfect. Okay. So, all right. So before starting, some of you might know me already, and for some of you, it might be the first time that you're meeting me. So I want to introduce myself. My name is Poonam Kumari. I have done my bachelor's in economics from Sri Ram College of Commerce. So I entered college in 2015, and post that I did my master's in economics from Indian Statistical Institute, Delhi. So I did that in 2018. Post that I have also worked as a data scientist for 2 years. And since the last close to 2 years, I'm full-time teaching. So that's how we are also meeting. So that's some 2 bits about me. So, okay. So now that we've done with all the housekeeping stuff, I want to start the course by setting up the agenda. So सबसे पहले, what are we going to do? We'll understand what the course syllabus is, what is the pattern of your paper in the finals exam, किस तरीके का pattern आता है, सिलेबस क्या है, रेफरेंस बुक्स क्या हैं, हम किस तरीके से इस पूरे कोर्स को स्ट्रैटेजाइज करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द बेसिक टॉपिक्स दैट वी विल बी डूइंग. ओके, सो बीच में किसी को भी कहीं पे भी किसी भी तरीके की ट्रबल हो, सो फील फ्री टू यूज द चैट box to type out your issues or anything, or you can also unmute yourself and discuss the issues. Okay, so I hope everybody is pumped up and we are ready to start the course. So okay, let's do that. All right, so before we also do that, okay, the thing that I have in mind, we can do it later also. So let's first start discussing the syllabus at hand. So सबसे पहले तो syllabus शुरू करने से पहले I would just want to talk about what reference books are we going to refer to. तो all of you must know Varian by now because आपका Microeconomics 1 भी उसी book से था. So we will have the same reference book, Hall Varian, so Intermediate Microeconomics. So that will be one of your reference books, Hall Varian. So Hall Varian की workbook जो है वो भी हम लोग यूज करेंगे to do the problems. So Hall Varian and उसके workbook को as reference we will be using to do more and more problems. Okay, and yeah, the second reference book again remains the same, which we had previously also, which is Nicholson and Snyder. So ये हमारी दूसरी reference book होगी, ठीक है. So the first one is Varian, second one is Nicholson and Snyder. So ये दोनों books जो आपके पिछली बार आपने semester 3 के लिए as reference use किए थे, same books are going to remain which you used previously also. There is just one book जिसका edition हुआ है, which is Osborne. ठीक है, there is a book by M.J. Osborne, Introduction to Game Theory. ठीक है, because this time you will be studying game theory also.
So वो जो book है, that will also become your reference book. Don't worry too much. There is just one chapter that you have to refer from that book, and this book is easily available online also. So ये हमारे 3 मेन रेफरेंस बुक्स होंगे, हॉलवेरियन, निकलसन एंड स्नाइडर एंड ऑसबॉर्न. So ये दो already you must be familiar with. This one is getting added new, and we just have to do one chapter from this particular book on game theory. ठीक है, so ये हमारे 3 रेफरेंस बुक्स होंगे. Okay, now that we are clear with that, let's jump on to the syllabus portion. ठीक है. Okay, so the way your syllabus has been designed, it's kind of an extension of जो आपने last time किया था. तो last time हमारा जो main core syllabus था वो 2 हिस्सों में divided था, right? We had a consumer theory portion and we also had a producer theory portion. So consumer theory में हमने किया था budget constraint, utility, buying, selling, reveal preferences, ये सारे topics हमने cover किए थे. एंड जो हमारा प्रोड्यूसर थियरी वाला पोर्शन था वहां पे हमने कॉस्ट एंड प्रॉफिट और ये सब तरीके के टॉपिक्स को डिस्कस किया था. ठीक है, सो इस बार इट्स काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन टू दैट सिलेबस ओनली. सो 2 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड है हमारा कोर्स. सो जो जिस तरीके से लास्ट टाइम पेपर भी था आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए मोस्टली कंज्यूमर थियरी पे बेस्ड था, सेक्शन बी जो था वो प्रोड्यूसर थियरी पे बेस्ड था. Same pattern is going to be followed this time also. So the way I am discussing your syllabus, it's similar to the way your paper will be there. ठीक है, so paper जो होगा आपका final exam जो होगा उसमें भी 2 sections होंगे. सेक्शन ए जो है कंज्यूमर थियरी का एक्सटेंशन होगा. ठीक है, एंड सेक्शन बी में हम मोस्टली प्रोड्यूसर थियरी या रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग द सिलेबस इन दैट मैनर. ठीक है, ऑल्दो द वे द सिलेबस हैज बीन मेंशन्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट्स यूनिट 1, 2, 3, 4 जो थोड़ा सा मिक्सअप है. ठीक है, सो दिस इज द मैनर दैट वी विल फॉलो टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. सो पहला जो आपका एग्जाम में सेक्शन होगा, सेक्शन ए, उसमें क्या होगा, यू विल हैव 4 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 2 out of 4 questions. अब ये सेक्शन ए जो है ये किस किस चीज पे बेस्ड है? There are 2 units in this section. First is unit 1 and then unit 4. ठीक है, the name for the first unit is general equilibrium, efficiency and welfare. ठीक है, and unit 4 is market failure. ठीक है, तो कंज्यूमर थियरी में जो हमने लास्ट सेमेस्टर 3 में पढ़ा था, हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे थे कि वो कैसे डिसीजन लेता है, उसका यूटिलिटी कब किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होता है, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उसके कंजम्पशन बंडल कैसे चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग. ये सब तरीके के एनालिसिस हमने लास्ट टाइम देखे थे. ठीक है, तो लास्ट टाइम हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे थे, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फोकस में रख के, एक ही इंसान को फोकस में रख के सारा डिस्कशन कर रहे थे. बट जब आप रियल लाइफ में चीजें करते हो, इन रियलिटी इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल. जब हम लोग बहुत सारे इंडिविजुअल साथ में रह के कोई चीजों का ट्रेड करते हैं, तब क्या होता है, there are more than 1 people involved. So how does trade happens? So let's say there are two goods in the market, 2 गुड हैं या 3 गुड हैं, एक तीसरे गुड का अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उससे पहले गुड की डिमांड को क्या होगा. We also need to see all of those interactions, all of those things. So इस तरीके के सारे डिस्कशंस को हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर जो है डिस्कस करते हैं. सो जो आपने पिछले बार सारा डिस्कशन जो किया था वो था पार्शियल इक्विलिब्रियम, कि यू वर जस्ट फोकसिंग ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, ऑन अ सिंगल पर्सन एंड डिस्कसिंग हाउ डज ही और शी डिसाइड्स. बट नाउ व्हाट इफ यू हैव मोर देन 1 person, what if you have more than 1 product, because that is something which is close to reality, right? बहुत ही स्टैंड अलोन तरीके से चीजें नहीं होती हैं. You have more than 1 people, you have more than 1 products. तो उस केस में हाउ डू वी एनालाइज कि लोग किस तरीके से डिमांड करते हैं, मार्केट में क्या प्राइस होता है. वी नो मार्केट में प्राइस किस तरीके से डिटरमिन होता है, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो लोग किस तरीके से डिमांड करते हैं, देयर आर मोर देन 1 people इन्वॉल्व.
सो ये जो सारा डिस्कशन है, गोइंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल पर्सन टू मोर देन वन पीपल, उसको हम लोग जनरल एक्विलिब्रियम के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। सो जनरल एक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी, कि जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं मार्केट में, तो व्हाट इज द एफिशिएंट आउटकम, व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट थिंग टू डू, वो कौन सा पॉइंट है, वो कहाँ पे कंजम्पशन करे कि हर एक इंसान को मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट वी विल बी डूइंग इन एफिशिएंसी। एंड देन द थर्ड टॉपिक इज वेलफेयर। तो वेलफेयर हम लोग जो है कि एक इकोनॉमी में अगर आप रह रहे हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो हाउ कैन यू प्रोवाइड द मैक्सिमम बेनिफिट टू द सोसाइटी एज अ होल। ये सारे डिस्कशंस हमारे यूनिट 1 में होंगे, विच इज जनरल इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी एंड वेलफेयर, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट सेक्शन। तो इसके लिए व्हाट आर द रेफरेंसेस दैट वी हैव। सो आपको पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं करने हैं। सो द वे आई हैव मेंशन्ड देम हियर इज कि आई हैव जस्ट रिटन द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स, बट for some chapters you only have to refer a few pages, so that also will be shared with you, okay। so सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर जो है वो क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 31 एक्सचेंज एंड चैप्टर नंबर 33 विच इज वेलफेयर। ये दोनों चैप्टर्स आपको हॉल वेरिएंट बुक से करने हैं और उसी के वर्कबुक प्रॉब्लम्स और वो सब आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वेरिएंट से हमें डिस्कस करने हैं। एंड देन there is one portion also that we have to do from the other book which is Nicholson and Snyder, वहां से chapter number 13 which is named general equilibrium and welfare। so ये 3 chapters जो है they will form our first unit। so 2 chapters variant से and 1 chapter from Nicholson and Snyder, ये दोनों chapter पूरे पूरे आपके syllabus में हैं। and this particular chapter only a few topics are there, it's not the entire chapter that you have to do, कुछ few topics ही करने। I will let you know in due course what topics are those, ठीक है। so ये 3 chapters होंगे हमारे यूनिट 1 में, ठीक है, ओके। so अब यूनिट 1 में हम लोग काफी सारे कि generally how do things happen, what is the competitive equilibrium, where should people consume, what is Pareto optimal, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये सारी एक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए हमें कुछ कुछ अजम्पशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। दीज सेट ऑफ थिंग्स ओनली हैपन अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो जब भी वो कंडीशंस वायलेट हो जाएंगी देन देयर विल बी अ केस ऑफ मार्केट फेलियर। एफिशिएंट एलोकेशन तक आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। मार्केट फेलियर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो या एलोकेशन नहीं हो रहा है। मार्केट फेलियर का मतलब एक तरीके से ये होता है कि आप जो एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट आउटकम था इकोनॉमी में जो होना चाहिए था अमंग इंडिविजुअल्स, वो नहीं हो पा रहा है। तो व्हेनेवर दोज अजम्पशंस डोंट फॉलो यू हैव अ केस ऑफ मार्केट फेलियर, यू आर नॉट एबल टू रीच द मोस्ट एफिशिएंट आउटकम। तो जब वो सारे अजम्पशंस वायलेट होते हैं देन देयर इज अ केस ऑफ मार्केट फेलियर। तो इसी से मिलता जुलता लाइक ये वाले अजम्पशंस अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं then there is a case of market failure। so इसी के immediately बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, market failure, कि under what condition market failure happens, that we will get to know in the due course। and उसी से related हमारे 3 topics होंगे which is market fails whenever there is a public good situation, whenever there is externality and whenever there is asymmetric information। public good मतलब एक ऐसा गुड जिसको हर कोई कंज्यूम करेगा, ठीक है, बट कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक इंसान नहीं करेगा। एक्सटर्नैलिटीज मतलब, एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि इफ माई एक्शंस आर अफेक्टिंग यू आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, सो किसी एक इंसान के एक्शंस अगर किसी दूसरे इंसान को अफेक्ट कर रहे हैं देन ऑल्सो देर इज अ केस ऑफ मार्केट फेलियर, ठीक है। सो ये दिस इज ऑल्सो one of the topics that we will be discussing। and the third topic will be asymmetric information। asymmetric information मतलब कोई एक situation है जहां पे there are 2 parties, okay। 2 parties का मतलब let's say you go and buy a car, 2 parties है, there is a buyer of a car and there is a seller of a car, ठीक है। so जो seller of the car है, तो जो इंसान कार को सेल कर रहा है he or she has better information about the car कि भाई कार की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, कार चलती है या नहीं, कि 10 किलोमीटर चलने के बाद वो जवाब दे देती है, या किस तरीके की कार है। सो जो सेलर ऑफ द कार है
उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है देन द वन हु इज बाइंग द कार. सो देर इज अ एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन. सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता कि दोनों पार्टीज के पास सेम इंफॉर्मेशन होती और उस बेसिस पे वो डिसीजन बनाते. बट अभी क्या है, एक इंसान के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और एक के पास रिलेटिवली कम है. तो इस केस में भी देर इज अ केस ऑफ मार्केट फेलियर. सो ये जो है, ये 3 टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड ये तीनों चैप्टर 36, चैप्टर 34 एंड चैप्टर 37, दीज 3 चैप्टर्स ऑल्सो वी विल बी डूइंग फ्रॉम वेरिएंट. ठीक है. सो मेजर जो है आपका सेक्शन ए जो है, दैट विल बी फ्रॉम योर वेरिएंट बुक. सो chapter 31, 33, 34, 36 and 37. So 5 chapters from variant book and chapter 13 will be from Nicholson and Snyder. ठीक है. सो ये होगा हमारा फर्स्ट सेक्शन. सो ये क्लियर एक एक्सटेंशन होगा हमारा कंज्यूमर थियोरी का. ठीक है. तो ओके, ऑल राइट. सो बिकॉज ये वेरिएंट से है तो वेरिएंट के वर्कबुक्स, उसके प्रॉब्लम्स और ये सब भी जो है दे बिकम रेलिवेंट फॉर अस. ठीक है. सो दैट फॉर्म्स आर फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए. तो हम लोग भी जब अपना डिस्कशन करेंगे तो फर्स्ट वी विल डू यूनिट 1 एंड देन वी विल डू यूनिट 4. सो इट्स नॉट लाइक आई विल डू यूनिट 2 and 3 इन द मिडल बिकॉज फिर कनेक्शन टूट जाएगा. ठीक है. सो दिस कम्स इमीडिएटली आफ्टर दैट एंड दैट्स हाउ दे ऑल्सो आस्क इन द पेपर ऑल्सो. ठीक है. सो फर्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा, उसमें वी विल हैव 4 क्वेश्चंस जिसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने होंगे. सो पेपर का जो लेवल होता है वो वैसा ही है. यू गाइज मस्ट हैव सीन semester 3 microeconomics paper and we've heard a lot regarding the irregularities in terms of जिस तरीके से पेपर लिखा भी हुआ था, बहुत सारी चीजें मिसिंग थी. तो आई मीन, so be prepared. Sometimes things might go here and there, but yeah. So paper का level of difficulty वही रहेगा because it is not a very easy paper to do. So be prepared mentally कि हमारा पेपर easy नहीं होने वाला है. लेवल पेपर का वही रहेगा. बट बिकॉज हमें 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं तो हमें बहुत चॉइस मिल जाती है. ठीक है. सो अगर हमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है तो वी कैन अटेम्प्ट द अदर वन. इन दैट टर्म्स इट बिकम्स अ लिटिल convenient, but otherwise the level of questions, you know how semester 3 paper was, so it's going to be similar to semester 3 microeconomics paper. ठीक है. Barring the technical problems that you guys faced. Okay, so that will be your first section. ठीक है. So अभी तक any doubts, any queries? I'll just take a 30-second pause, let this sink in, and if you have any queries or doubts till this point, let me know. So that will be your section A for the syllabus, and this is the manner that we will be doing this paper in. So first unit 1 and then 4 and then 3 and 2. If everything is fine, just you can quickly let me know in the chat if everything is fine. Okay. All right. Perfect. So all right. Okay. So that will be the first section of the paper. Now let's look at the section B for the paper. So section B जो है वो क्या होने वाला है? Section B will also be similar. ठीक है. So section B में हमारे पास क्या होगा? Again the same format. You have 4 questions. Attempt any 2. ठीक है. At least that's the information that we have available till this point. If there is any other new meeting regarding your syllabus happens, so I'll incorporate appropriate changes. But this is the information that we have so far. So you have to do 4 like you will have 4 questions out of which you will have to attempt 2. ठीक है. ओके. अब जो हमारा चैप्टर है, अब जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या रहेगा?
देयर इज यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ठीक है. सो एक तरीके से इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोड्यूसर थियोरी दैट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम. सो सेक्शन बी हमारा लास्ट टाइम प्रोड्यूसर थियोरी था. दिस टाइम ऑल्सो section B will be an extension of producer theory, ठीक है. So the way we will be doing this would be, we will not do chapter 2, we will not do unit 2 first, we will do unit 3 first, because यूनिट 3 में भी बहुत, जैसे जब आप यूनिट 2 करोगे उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं which are somehow related to unit 3. तो we will be doing that first and then doing unit 2, ठीक है, so that there is a sync of concepts and we are well aware of how to tackle them, ठीक है. So first we will be doing unit 3. unit 3 क्या है? market structure and game theory. तो इसमें we will have to do 2 chapters, which is chapter number 14 monopoly and chapter number 15 imperfect competition, ठीक है. So perfect competition में हमने cost, प्रॉफिट, वो सब डिस्कस किया था. फिर अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मोनोपोली. सो लास्ट टाइम हमने वो सब डिस्कस किया था. फिर मोनोपोली में किस तरीके से चीजें होती हैं, वी विल डू दैट. एंड देन वी विल ऑल्सो डू इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कि व्हाट इफ देयर आर टू फर्म्स. ओलिगोपोली में क्या होता है? सो देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में क्या होता है? देयर आर 2 firms which are operating. तो वो फर्म आपस में किस तरीके से compete कर रही हैं, ठीक है. It also has an element of game theory into it, so we will do that. इसके लिए जो है आपके रेफरेंस बुक्स होंगे, वो क्या होंगे? निकलसन एंड स्नाइडर ओनली. सो 2 chapters from there. सो वहां के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है. सो वी विल बी डूइंग दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, the next unit is going to be game theory, ठीक है. So this is something which will be very new to you. It's a very interesting topic. So ये बिल्कुल new होगा आपके लिए. So strategic form game with perfect information, ठीक है. So Nash equilibrium क्या होता है? So this is the this is the chapter which we will have to do from the new book, which is Osborne. So वो हम लोग यहाँ से करेंगे. So only 1 chapter from there and chapter number 8 from Nicholson and Snyder, game theory पे based जो होगा, ठीक है. So ये हमारे major references and chapters होंगे. So this will be something which will be very new to you, game theory. ये आज तक आपने अभी तक कभी नहीं किया है. Very interesting topic, and later on also it will keep coming up. Sometimes आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है लेटर ऑन इन योर थर्ड ईयर, विच इज गेम थियरी. सो सम पीपल टेक दैट ऑल्सो. सो ये एक फाउंडेशन बन जाता है वो सब कोर्सेज के लिए, ठीक है. ओके, so yeah, clearly we know we have some chapters from Nicholson and Snyder, and most of the consumer theory is from Varian. So that's how we will be doing it. The way I will be doing it, first unit 1 and then unit 4, and then we will be going to section B, जहाँ पे first we will do unit 3 and then we will do unit 2, ठीक है. इसी तरीके से हमारा पेपर भी जो है, पेपर का पैटर्न भी होगा. सेक्शन ए, सेक्शन बी, 4 questions in each section. We will have to do 2 questions in both the sections, ठीक है. So total हमें 4 questions attempt करने होंगे in the entire paper, ठीक है. So yeah, that will be your syllabus. And हमारे reference book again, Varian, Nicholson and Snyder, and a new reference which is Osborne, Introduction to Game Theory, ठीक है. So ये हमारे जो है reference books, and this will be the syllabus. Any doubts, any queries till this point? Yeah, that's majorly your syllabus and pattern of the paper that we will have. Let me know if there are any queries or concerns till this point. Okay. So yeah. जैसे कि थर्ड सेम में जो सेक्शन ए था वो पूरा ही मिसप्रिंट था, तो हम प्रोड्यूसर थ्योरी
पहले अटेम्प्ट कर पाए थे क्योंकि वो मिसप्रिंट नहीं था, लेकिन अगर पूरा ही पेपर मिसप्रिंट आ जाए और करेक्शन भी 1 घंटे बाद ही हुई थी, तो उस केस में फिर क्या करना चाहिए हमें? हम एज स्टूडेंट्स तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते. वी ऑलवेज लुक टू टीचर्स टेलिंग अस कि क्या करना है. बट ऐसे केसेस में यूनिवर्सिटी थोड़ी लीनियंट हो जाती है, और दे गिव ग्रेस मार्क्स टू पीपल. आइडियली दिस शुड नॉट हैपन. आई मीन, what happened was a very rare event which you became witness to. But मतलब as students we can't really do anything. जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हो, इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग, यू कैन जस्ट लेट द इन्विजिलेटर नो कि आई फील देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, कैन यू प्लीज चेक विद like one of the faculties who's there for that subject, क्योंकि usually faculties होती हैं वहां पे, and they are also taking some time. just जब आपका पेपर मिलता है तो वो भी उसको चेक कर रहे होते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है. एंड देन इफ somebody finds some error, then they call all the colleges and then corrections are made. ठीक है. So I think as students that's the only thing that you could do. But yeah, but what happened was very unfortunate. That should not have happened. एंड यूजुअली क्या होता है, एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम मिल जाती है, ठीक है, थोड़े बहुत मिसप्रिंट्स होते हैं. बट व्हाट वाज सीन कि मतलब हर एक क्वेश्चन में, कि हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, that is something like I don't know who was making the paper and how this was done. So I mean that is very very unusual. So very एक rare event हुआ है आपके साथ. ठीक है. Usually this is not what happens. So when we used to give exam, most of the times एक दो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं कि प्लस प्लस ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, लॉग लगा लो, लाइक ये इस लेवल की मिस्टेक्स होती थी. नॉट लाइक हर क्वेश्चन में हर पार्ट में आप मतलब फंक्शन ही देना भूल गए हो. ठीक है. सो दैट्स नॉट व्हाट यूजुअली हैपेंस. द मैक्सिमम दैट यू कुड डू इज टेल योर इन्विजिलेटर कि मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप चेक करवा दीजिए. दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कुड डू. Nothing much from the other side. Okay. Okay. All right. Okay. So before moving on, also guys, I also want to tell you a little bit about the course. So what is usually the pattern? So most of our classes will happen on weekend this time. Okay. So Saturdays and Sunday. If some of you have colleges on Saturday, don't worry, because right now we don't know who will be joining us. So once we are clear with who will be joining us based on आपका सैटरडे को कॉलेज है या नहीं है, वी विल बी amending the schedule for Saturday, because I've heard some people have colleges on Saturday and during the day they have classes. So we will make sure कि आप you will have appropriate time to attend the classes. So that is one. Second thing, so we will have classes on weekends. Usual duration of the classes would be 2.5 hours with appropriate breaks in between. Today we will have a short class because this is an introductory class. And so like 2.5 hours is usually the duration with the breaks in between. So today is 14th of January, and so unlike your previous semester, which was quite squeezed in, 3 महीने का ही आपका semester था, this time they have given you appropriate breaks and all. You will have a midterm break also, and so बहुत ही like you have enough time, but use that appropriately. Starting से ही पढ़ाई करो, problems को solve करो, because like this is the only semester which is going to feel a little difficult, because in economics honors second year is the most difficult. So you've already tackled the first of the most difficult semesters, and then this is the next fourth semester which is going to be a little difficult, because first 3 subjects and then quite math heavy courses. So be aware with that. आपका tentative जो schedule है, आपके जो exams का tentative date है, that is 15th of May. I plan to finish the courses by 20th of April.
although in the schedule that I've given, I've also kept classes till 30th of April, so that, you know, some here, there, if we mess up or we need some extra classes, we have time for that. But I plan to finish the course by 20th of April. So you have good enough, close to 1 month to, you know, prepare on your own. And apart from that, we will be conducting regular doubt sessions from the very beginning. So usually last time also we were having lots of doubt classes, but this time we will keep it very, very regular, like to begin with. Starting se hi, we will not wait for exams to come. And I would also encourage you to do that from the very beginning, taki burden na ho ekdam se exam ke paas, theek hai? So that you can enjoy also and study also together. And yeah, apart from that, I will be sharing the class notes. You will be getting access to the class recordings also, because in case you miss some classes, so you should have the option of revisiting the class. Let's say if you don't understand any topic, so you can revisit that, and you will also be getting the notes for the chapters that we will be doing. So yeah, those were the housekeeping things that I wanted to discuss with you. And yeah. Any other query, any other concern, feel free to use the chat to address all those queries. Okay. Yeah, so I think that's majorly all the housekeeping stuff that I wanted to tell you. Now we can start with the chapter. We can start with first unit, which is general equilibrium, efficiency and welfare. ठीक है? So कोई भी doubt हो, कुछ भी हो, feel free and we can start. Okay, guys, let's start. Okay, I think okay, let's start. ठीक है, तो अभी तक हमने जो है जिस भी तरीके के कंज्यूमर प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, वहां पे हमने हमेशा एक इंडिविजुअल के बारे में डिस्कशन किया है. ठीक है, हमेशा मार्केट फॉर अ सिंगल गुड, कोई भी एक सिंगल गुड है, उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करें, या एक सिंगल गुड की डिमांड आप किस तरीके से कर रहे हो, एक कंज्यूमर किस तरीके से चीजों को देख रहा है, वो ही सब हमने डिस्कस किया है. सो मार्केट को बहुत ही आइसोलेशन में डिस्कस किया है. ठीक है, कि अगर एक गुड का प्राइस चेंज हो रहा है तो उस गुड की डिमांड को क्या होगा, राइट, बाय कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट. दूसरे गुड, उसके चाहे कॉम्प्लीमेंट्स हो चाहे सब्सटीट्यूट्स हो, वी डिड नॉट यूज टू सी व्हाट हैपेंस टू रेस्ट ऑफ देम. हम लोग बहुत ही एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते थे कि ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, जस्ट दिस इज चेंजिंग, एंड देन टेल अस व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू move away from that. We are trying to bring in more and more complicated situation. हम more than one person को involve करना चाह रहे हैं, more than one goods को involve करना चाह रहे हैं, and फिर देखना चाह रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके से equilibrium आता है. ठीक है, so अभी तक हमने आइसोलेशन में सारी चीजें देखी है, बट अब वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम दैट. ठीक है, सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग चीजों को सिंप्लीफाई रखने के लिए वी विल कीप अ फ्यू थिंग्स एंड आई वांट टू स्पेसिफिकली हाईलाइट दोस थिंग्स राइट नाउ. ठीक है, सो हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले हमें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं वो हम लोग समझेंगे. ठीक है, जो आप पहले तक करते थे, जब आप सिर्फ एक ही गुड पे फोकस करते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. उसको हम लोग क्या बोलते थे, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. ठीक है, कि एक ही गुड है, उसी की डिमांड और सप्लाई किस तरीके से चेंज होती है बिकॉज ऑफ वेरियस चेंजेस. ठीक है, but now we will bring into the picture more than one good and then start analyzing things. We will also bring in more than one person and then start analyzing the picture. ठीक है, तो before we do that,
सो बेसिकली जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ डिमांड एंड सप्लाई conditions interact in several markets together. In several markets to determine the price of many goods. तो कल को हम लोग पहले जो डिस्कस कर रहे होते थे वो क्या बोलते थे कि सपोज आपको मार्केट में एप्पल्स का प्राइस डिटरमिन करना है, तो हम लोग क्या देखते थे कि भाई एप्पल्स का डिमांड देख लो और एप्पल्स की सप्लाई देख लो, जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बिकम द प्राइस फॉर एप्पल्स. बट एप्पल इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट. देयर आर मोर देन वन गुड. एप्पल्स भी है, ऑरेंज भी है, खाना भी है, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक इंसान है उसको सिर्फ एप्पल ही खाना है, उसको एप्पल भी खाना है, उसको ऑरेंज भी खाना है, उसको ग्रेन्स भी खाने हैं. राइट. सो वन पर्सन कंज्यूम्स मोर देन वन थिंग्स. राइट. एंड देर आर मोर देन वन पीपल इन द मार्केट. ठीक है. सो पहले हम लोग एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे होते थे और एक ही गुड के बारे में बात कर रहे होते थे. ठीक है. कि क्या हो रहा है एप्पल्स के रिलेटेड. बट there are more than one people in the market and there are more than one goods in the market. अब इस तरीके के मार्केट में तो एज अ पर्सन आई नीड मल्टीपल गुड्स, यू ऑल्सो नीड मल्टीपल गुड्स, सम अदर पर्सन ऑल्सो नीड मल्टीपल गुड. तो हम लोग एवरीबडी इज डिमांडिंग समथिंग. मैं भी एप्पल्स को डिमांड कर रही हूँ, आप भी डिमांड कर रहे हो, हम सब लोग मिलके एक गुड को डिमांड कर रहे हैं. ठीक है. और कोई मार्केट में उनको सप्लाई भी कर रहा है. ठीक है. तो इस केस में टोटल डिमांड टोटल सप्लाई किस तरीके से होती है. ठीक है. और बहुत सारे गुड्स के प्राइसेस एक साथ किस तरीके से डिटरमिन होते हैं, ये सब हम लोग देखना चाहते हैं. और इसको जनरल इक्विलिब्रियम नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इन जनरल हम लोग देखना चाहते हैं. हम लोग किसी एक मार्केट को कट ऑफ करके नहीं देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट द एंटायर मार्केट एज अ होल. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. In general, how does the different markets interact with each other. ठीक है. सो ये पूरा एनालिसिस करने से पहले हमारे कुछ हम सिंप्लीफिकेशंस करना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट आवर सिचुएशन, वी वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेरी, मतलब जो बिल्कुल सिंपलेस्ट चीज को समझ के हमारा काम बन सकता है, हम लोग उस लेवल पे चीजों को समझेंगे. ठीक है. Hello Hitesh, good evening. Okay, all right. So for those of you who just joined a little late, we are discussing the unit 1, which is general equilibrium, and general equilibrium ki basic concepts ko we are doing. Okay, all right. Okay, so okay. तो आई जस्ट वांट टू मेंशन व्हाट ऑल सिंप्लीफिकेशंस वी विल बी कीपिंग इन माइंड. हम क्या क्या चीजों को सिंप्लीफाई करके इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे. फर्स्ट इज सो सर्टेन सिंप्लीफिकेशंस. तो सबसे पहली सिंप्लीफिकेशन तो ये है कि हम लोग हमारा पूरा डिस्कशन लिमिट करके रखेंगे टू कंपेटिटिव मार्केट्स. ठीक है. कंपेटिटिव मार्केट का मतलब क्या होगा, ऐसा मार्केट जहां पे प्राइस पे आपका कंट्रोल नहीं है. तो जो भी सप्लायर है या जो भी डिमांडर है वो प्राइस को एडजस्ट नहीं कर सकता. इफ आई एम डिमांडिंग एप्पल्स, आई हैव नो कंट्रोल ओवर व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल. सो मुझे मार्केट में जो प्राइस मिलेगा मुझे उसी प्राइस पे एप्पल को खरीदना पड़ेगा. ठीक है. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो वी विल लिमिट आवर डिस्कशन to competitive markets. जब भी हम लोग competitive market के बारे में बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है
कि कंज्यूमर भी प्राइस टेकर है और प्रोड्यूसर भी प्राइस टेकर है। अगर आप कुछ चीज प्रोड्यूस भी कर रहे हो कंपेटिटिव मार्केट में, तो मार्केट में जो प्राइस है वो आपको गिवन मान के ही अपना प्रोडक्शन जो है करना पड़ेगा। और एज ए कंज्यूमर ऑल्सो यू हैव नो इम्पैक्ट व्हाटसोएवर ऑन द प्राइसेस, ठीक है। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपेटिटिव मार्केट। सो कंज्यूमर्स and producers both will be price takers. So जो प्राइस है वो मान लिया और फिर आगे बढ़ के एनालिसिस को करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड थिंग, ठीक है, सो ये तो हो गया फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड थिंग, हमने क्या बात की थी कि हमें मोर देन वन गुड को एनालाइज करना है, हमें मोर देन वन पीपल जिस मार्केट में उसको एनालाइज करना है, ठीक है। सो हम एक इस तरीके के मॉडल को स्टडी करेंगे विच इज 2x2x2। इसका मतलब क्या है कि जो हमने बोला है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट वर्क्स व्हेन देयर आर मोर देन वन पीपल, मोर देन वन गुड एंड मोर देन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो बेसिकली इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो हम किस केस को एनालाइज करेंगे? 2 गुड्स हैं हमारे पास, 2 लोग हैं हमारे पास, और हमारे पास 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सो अभी राइट नाउ जो हम पूरा डिस्कशन करेंगे वहां पे हम लोग प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम मान लेंगे कि हमें ऊपर से इंडाउमेंट मिल गया है, वो प्रोड्यूस कैसे हुआ वो हम लेटर ऑन हमारे मॉडल में ऐड करेंगे। बट जस्ट टू क्लैरिफाई एवरीथिंग टू बिगिन विद, वी विल फॉलो अ 2x2x2 मॉडल। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें 2 लोगों के प्रेजेंस में, 2 गुड्स के प्रेजेंस में एप्लीकेबल है, सेम चीज को जनरली आप लोग अप्लाई कर सकते हो व्हेन देयर आर मोर देन 2 गुड्स, मोर देन 2 पीपल इन द मार्केट, ठीक है। सो हम जो है हमारा पूरा एनालिसिस किसके अराउंड रखेंगे? वी विल कीप आवर एनालिसिस टू द केस ऑफ 2 गुड्स and 2 consumers. पहले ही we can't complicate our entire story and not and mess it up and don't understand anything, ठीक है। सो पहले हम एक कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे थे, अब हम 2 कंज्यूमर्स किस तरीके से डिसीजंस लेंगे, एंड वी हैव 2 गुड्स, ठीक है। सो 2 गुड्स एंड 2 कंज्यूमर्स किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होगा व्हेन दिस इज द सिनेरियो, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड और ये वाला जो भी हम लोग एनालिसिस करें इसको बहुत ही जनरलाइज किया जा सकता है मोर देन 2 गुड्स एंड मोर देन 2 कंज्यूमर्स के लिए भी। इसीलिए हम सबसे सिंपलेस्ट नॉन ट्रिवियल केस देखते हैं, ठीक है। सो दैट इज द सबसे सिंपलेस्ट नॉन ट्रिवियल केस। ट्रिवियल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको समझ के कोई फायदा नहीं है, राइट। सो जैसे सो लाइक सम ट्रिवियल डिटेल, अननेसेसरी यू कैन से, ठीक है। So that is the second thing. What is the third simplification that we have? So the third simplification is हम 2 stages में पूरे analysis को देखेंगे। Yeah. In second assumption, we will not be taking into account producers. So अभी जो है starting में we will first keep production out of the question. जैसे जो भी गुड आप मार्केट में खरीदने जाओगे वो आपको कहीं ना कहीं से तो किसी ने प्रोड्यूस किया होगा, बट जब हम स्टार्टिंग में पूरी चीज को समझेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि मतलब ऊपर से आ गया है हमारे पास गुड, वो कैसे आया उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बट लेटर ऑन जो है इसी टॉपिक के अंदर वी विल ऑल्सो ब्रिंग इन टू पिक्चर हाउ दोज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो वो एस्पेक्ट को भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। Is that fine? Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी हम लोग 2 गुड एंड 2 कंज्यूमर के केस को स्टडी करेंगे, और पहले प्रोडक्शन को आउट ऑफ पिक्चर रख के उसके बारे में ज्यादा बात किए बिना चीजों को समझेंगे। पहले जब हमें वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी फिर हम लोग हमारी स्टोरी को और कॉम्प्लिकेट करेंगे बाय ब्रिंगिंग प्रोडक्शन इनटू पिक्चर, ठीक है। तो व्हाट इज द थर्ड simplification that we will be doing? So basically we will do the entire process in 2 stages.
सो पहले तो हम ये केस समझेंगे कि जो जब लोगों के पास फिक्स्ड इंडाउमेंट्स हैं, ठीक है। So I am hoping and it's a very big hope कि you know what endowment means. If anybody has any trouble in understanding the word endowment, let me know. So is everybody clear with what endowment is? Guys, don't hesitate. Endowment का मतलब क्या? I mean, so the first rule for learning anything is to be, you know, kind of indifferent to what other people will think कि ये आता है या नहीं आता है, because no questions are stupid questions. You can just, you know, just feel free to ask. क्योंकि एक इंसान एक ही बार स्टूपिड होता है, दूसरी बार फिर वो एक लर्नेड इंसान बन जाता है. सो आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनी प्री रिक्विजिट्स कि आपको ये तो पता होना ही चाहिए. किसी को किसी भी चीज में कभी भी डिफिकल्टी हो, चाहे वो टॉपिक हमने पहले कर लिया हो या नहीं किया हो, वो चाहे चीज आपने पहले कर ली हो या नहीं कर ली हो, यू शुड नॉट कीप दिस इन योर हेड कि ये तो हमने किया है और फिर ये हम पूछेंगे और फिर ये कैसा लगेगा. You should leave that out of your mind and feel free to ask anything. ठीक है. सो इंडाउमेंट का मतलब होता है कि ऐसे सो एक तरीके से इंडाउमेंट का मतलब आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से आपके पास कितनी वेल्थ ऑलरेडी अवेलेबल है या कितना अमाउंट ऑफ गुड ऑलरेडी अवेलेबल है, या इसको आप एक जायदाद की तरह भी समझ सकते हो. ठीक है, कि कितना जायदाद आपको मिली हुई है ऑलरेडी विदाउट यू डूइंग एनीथिंग. ठीक है. सो फिक्स्ड इंडाउमेंट्स ऑफ गुड मतलब कि कहीं से बस आपको गुड्स की सप्लाई कर दी गई है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है. ठीक है. सो ये जो हम पूरा एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले 2 स्टेजेस में करेंगे. सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि ये जो 2 कंज्यूमर्स हैं, इनको कहीं से ये जो 2 गुड्स के बारे में बात करेंगे, ये मिल गए. अब कहाँ से आए, किसने दिए? इनके पिताजी, इनकी माताजी छोड़ के गए थे और फिर वो ही गुड्स जो है ये यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो दे हैव फिक्स्ड इंडाउमेंट ऑफ गुड्स. दैट इज द फर्स्ट स्टेज. ठीक है. एंड सो इस केस में क्या होगा, जब हम फिक्स्ड इंडाउमेंट्स की बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि तो जनरल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जब इनके पास फिक्स्ड इंडाउमेंट्स ऑफ गुड हैं और जब भी हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे तो ये देखेंगे कि अच्छा ये लोग आपस में किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है. सो हाउ विल ट्रेडिंग हैपन, हाउ दे माइट ट्रेड. ठीक है. एंड नो प्रोडक्शन इज इन्वॉल्व. कि ऐसा नहीं है कि ये जो 2 कंज्यूमर्स हैं इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा दी और ये 2 गुड जो है इन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया. ठीक है. वो दैट इज आउट ऑफ द पिक्चर राइट नाउ. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल केस को स्टडी करेंगे कि 2 गुड हैं, 2 कंज्यूमर्स हैं, इनको कहीं से जो है ये जो 2 गुड हैं इनका कुछ कुछ अमाउंट दे दिया गया है. कहाँ से आया हमें नहीं पता. फिर ये जो 2 लोग हैं ये मार्केट में किस तरीके से आपस में इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से आपस में ट्रेडिंग करते हैं. ठीक है. ये हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो ये बहुत ही सिंपल सा केस हो गया. पहले सिंपल केस समझेंगे फिर उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे. ठीक है. नो प्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड. ठीक है. तो ये हो गई पहली स्टेज. उसके बाद ठीक है, सो इसको हम लोग केस ऑफ प्योर एक्सचेंज भी बोलते हैं. ठीक है. ये जो स्टेज 1 है, केस ऑफ प्योर एक्सचेंज, ये अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्यों बोल रहे हैं. क्योंकि ना ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये लोग बस आपस में चीजों गुड्स को एक्सचेंज करेंगे अपने बीच में. दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग. कि मेरे पास 4 एप्पल हैं और 2 ऑरेंजेस हैं, शायद मुझे ऑरेंजेस ज्यादा पसंद है, तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, ये एक एप्पल ले लो, और आपके पास शायद 4 ऑरेंज थे और 2 एप्पल थे, तो मैंने एक एप्पल आपको दे दिया और बोला कि एक ऑरेंज मुझे दे दो. तो फिर इस तरीके से हम लोग एक्सचेंज करेंगे चीजों को. वो किस तरीके से करेंगे, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग. ठीक है. ओके. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सो जब हम लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी,
फिर we will examine the production behavior also. In the general equilibrium model. ठीक है, कि जब फिक्स्ड एंडाउमेंट्स थे और 2 गुड हैं, 2 और 2 कंज्यूमर्स हैं, तब किस तरीके से आप चीजों को, हाउ इज द मार्केट बिहेविंग, हाउ आर पीपल ट्रेडिंग विद ईच अदर. सो वंस वी अंडरस्टैंड दैट, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेज, विच वुड बी कि अब ये फिक्स्ड एंडाउमेंट्स नहीं है, अब प्रोडक्शन भी कर रहे हो आप गुड्स का. सो वो पूरा एनालिसिस हम लोग किस तरीके से करेंगे. ठीक है, सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग्स एंड देन वी विल कॉम्प्लिकेट आवर स्टोरी एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, विच इज अब 2 गुड, 2 person and 2 factor of production, which is labor and capital. If they are involved, how does the market behave? क्योंकि मार्केट में सिर्फ कंज्यूमर्स होने से काम नहीं चलता. जब आप ओवरऑल मार्केट को देखते हो, देयर आर कंज्यूमर्स ऑल्सो. ठीक है, देयर आर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो. हम लोग काम करते हैं, वी अर्न मनी. ठीक है, फिर वी स्पेंड मनी. वो मनी यू नो प्रोड्यूसर्स के पास जाती है. सो दिस इज द एंटायर फ्लो ऑफ economy that happens. So these are all the components of a market. So we will understand all of that in detail. ठीक है, ओके. सो ये 3 सिंप्लीफिकेशंस हम दिमाग में रखेंगे कि सिर्फ कंपेटिटिव मार्केट्स के बारे में बात करनी है. 2 गुड, 2 कंज्यूमर्स, ये वाला केस डिस्कस करेंगे सबसे बेसिक. और पहले फिक्स्ड एंडाउमेंट्स रखेंगे. सिर्फ ये मान लेंगे कि आपको गुड्स दे दिए गए हैं, आप किस तरीके से आपस में एक्सचेंज करते हो गुड्स को बिटवीन 2 कंज्यूमर्स, वो देखेंगे. जब हमें वो केस समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग हमारी स्टोरी को कॉम्प्लिकेट करके प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो उन गुड्स का, तो उसको भी हम लोग पिक्चर में लेके आएंगे. ठीक है, सो ये सब हमारी सिंप्लीफिकेशंस हैं. अब हम लोग जो है हमारा एक्चुअल डिस्कशन, सो ये अभी हम लोग बैकग्राउंड ही कर रहे थे, बैकग्राउंड साइड कर रहे थे कि ओके हम ये डिस्कस करेंगे, ये करेंगे. नाउ कम्स दी actual story. So we will start talking about our first concepts for the first lecture, which would be Edgeworth box. ठीक है, Edgeworth box. So Edgeworth box क्या होता है, ये किस चीज में हेल्प करता है हमें, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, so guys, any doubts till this point, anything that you have trouble with in understanding, let me know. All good till now? If it's fine, you can just, write thumbs up also. Okay, so let me suggest one thing. So guys, it's 5 right now. Let's take a 10 minutes break. Let's come back. We can, and then we can extend the class probably for 30-35 more minutes. And that will be the end for today's lecture. We'll just try to keep it short for today. Just wanted to keep it an introductory part. Okay, so let's take a 10 minutes break. It's 5 right now. Let's meet at 5:11 and then we will begin the discussion. So yeah. Okay. So before going into the break, we started talking about the general equilibrium model and हमारे क्या-क्या simplifications हम लोग दिमाग में रख के इस पूरे analysis को करने वाले हैं. So we discussed that, and now let's start talking about the first concept, which is Edgeworth box. Edgeworth box होता क्या है, इसका काम क्या है, all of that. ठीक है? So Edgeworth box क्या है? ठीक है? It is nothing but a tool. It's a graphical tool. ठीक है? Edgeworth box is nothing but. So hi Nikita, we've just started discussing the Edgeworth box. So you haven't missed anything. Okay. So Edgeworth box होता क्या है? It's a graphical tool. ठीक है?
ग्राफिकल टूल है ये, ठीक है। मतलब एक ग्राफ है जो हमें हेल्प करता है कोई चीज समझने के लिए। एंड व्हाट इज दैट थिंग इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग? सो इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग। Hello. या हाय निकिता, वी कैन हियर यू। Okay, so Edgeworth box is a graphical tool which helps us in analyzing the exchange of two goods. Between two people. तो हमने देखा है कि we have two people, we have two goods. अब वो आपस में किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे गुड्स को, उसके लिए उस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है, बहुत ही इंजीनियस तरीका है, बहुत ही आई वुड से वेरी जीनियस तरीका टू रिप्रेजेंट दैट। सो या अब हम एजवर्थ बॉक्स का यूज कैसे करते हैं, वी विल सी दैट, ठीक है। सो एजवर्थ बॉक्स का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? टू डिपिक्ट both the endowments and preferences of two individuals in a single diagram. तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे पास दो गुड्स हैं और मेरे पास दो लोग हैं, ठीक है। उनको कितना कितना गुड मिला हुआ है वो भी मुझे पता करना है, वो मुझे दिया होता है तो मुझे उसको भी रिप्रेजेंट करना है। और दो लोग हैं तो हर इंसान की कुछ ना कुछ प्रेफरेंसेस भी होंगी, राइट। हर इंसान की यूटिलिटी, हर इंसान के कुछ प्रेफरेंसेस हैं, बेस्ड ऑन दैट ही और शी विल हैव अ यूटिलिटी फंक्शन। तो दो लोग, उनके पास अमाउंट ऑफ गुड कितना है, जो उनका एंडाउमेंट है वो कितना है, और उनके प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट करने का बहुत ही ब्यूटीफुल सा तरीका, बहुत ही कन्वीनियंट सा तरीका है एजवर्थ बॉक्स, ठीक है। अब वो करते कैसे हैं, अब इस चीज को रिप्रेजेंट हाउ डू वी डू दैट, ठीक है। सो अब मान लेते हैं, अब हम जो है अपनी प्रॉब्लम को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव टू पीपल, लेट A and B are two people involved. So जो दो लोग इन्वॉल्व हैं वो क्या है? पर्सन A एंड पर्सन B, ठीक है। सो दो लोग हैं A एंड B, टू पीपल। सो टू पीपल एंड टू गुड्स ऑल्सो वी हैव, ठीक है। एंड टू गुड्स वी हैव, दो गुड है हमारे पास, और गुड को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? गुड 1 है और गुड 2 है, ठीक है। गुड 1 एंड गुड 2, ठीक है। सो वी हैव टू पीपल इन्वॉल्व एंड वी हैव टू गुड्स इन्वॉल्व, ठीक है। दो लोग दो गुड्स, ठीक है। ओके जी, उसके बाद ठीक है। सो कुछ कुछ जो है छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज अभी हम लोग देखेंगे, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो क्या होती हैं, ठीक है। सो अब ये देखो कि अब जैसे एक पर्सन है ए, अब पर्सन ए जो है वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा, राइट। वो गुड ए को कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा और गुड 1 को कुछ कुछ कंज्यूम करेगा और गुड 2 को भी कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं कि वो गुड कंजम्पशन बंडल ऑफ ए, बंडल ऑफ ए, कि ए कितना कितना अमाउंट ऑफ कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। सो वो पहले गुड को कितना कंज्यूम कर रहा है, मान लेते हैं XA1, कि ए पर्सन ने फर्स्ट गुड कितना कंज्यूम किया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ए टर्मिनोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पर्सन ए ने ही सेकंड गुड को कितना कंज्यूम किया, उसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? XA2, ठीक है। तो ये जो हमारा सबस्क्रिप्ट है ये क्या हो गया कि कौन पर्सन कंज्यूम कर रहा है, और ये जो सुपरस्क्रिप्ट है इसका मतलब क्या हो गया कि वो गुड 1 कंज्यूम कर रहा है या गुड 2 कंज्यूम कर रहा है, ठीक है।
सो पर्सन ए जो है, जो हमारा इंडिविजुअल ए है, कंज्यूमर ए है, वो कितना कंजम्पशन, उसका कंजम्पशन बंडल क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक जनरल तरीका जो है वो ये हो गया। ठीक है, अब सिमिलर चीज हम जो हमारा सेकंड कंज्यूमर है, कंज्यूमर बी, उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर बी का कंजम्पशन बंडल मैं किस तरीके से लिखूंगी, इफ एनीवन कैन टेल मी। कंजम्पशन बंडल ऑफ बी कैसे लिखूंगी मैं? हाउ शुड आई राइट इट? It's exactly the same way. What is changing? So consumer B फर्स्ट गुड को कितना कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे? So X1B, and similarly what about the other one? X2B। ठीक है, सो ये कंजम्पशन पर्सन ए का कंजम्पशन बंडल हो गया और ये पर्सन बी का कंजम्पशन बंडल हो गया। ठीक है, सो कोई भी एक पेयर ऑफ कंजम्पशन बंडल्स जो है, इसको हम लोग अगर जनरल वे में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको एक्स ए लिख देते हैं और इसको हम लोग एक्स बी लिख देते हैं। ठीक है, राइट नाउ यू माइट फील लॉट्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज कमिंग इन, बट the more you do it, it'll become easier, थोड़ा आप familiar हो जाओगे। ठीक है, so right now lots of definition will be introduced to you, क्योंकि अभी setup mode चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे you will get used to it। okay, so XA क्या है? consumption bundle of person A। XB क्या है? consumption bundle of consumer B। ठीक है, so there is a definition, allocation। एलोकेशन का मतलब क्या है? एलोकेशन इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म जिसका मतलब क्या होता है? अ पेयर ऑफ कंजम्पशन बंडल्स XA and XB is called an allocation। एलोकेशन का मतलब क्या है कि भाई पर्सन ए कितना कंज्यूम कर रहा है और पर्सन बी कितना कंज्यूम कर रहा है, इसको अगर आप एक साथ लिख दो तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज एन एलोकेशन। ठीक है, सो मान लो गुड 1 गुड 2 जो है, पर्सन ए जो है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट यूजिंग सम रैंडम एग्जाम्पल, पर्सन ए जो है 5 यूनिट्स ऑफ गुड 1 एंड 10 यूनिट्स ऑफ गुड 2 कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज एक्स ए। ठीक है, एंड एक्स बी क्या हो गया? मान लो कि पर्सन बी 10 यूनिट्स ऑफ गुड 1 एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड 2 कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो अगर आप एक्स ए और एक्स बी का पेयर एक साथ लिखोगे तो उसको हम बोलेंगे कि दिस इज एन एलोकेशन। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? सो आई विल राइट दैट 5, 10, 10, 5, दिस इज एन एलोकेशन। मतलब इस तरीके से दो गुड्स इन दो इंडिविजुअल्स के बीच में एलोकेट हुए हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई द टर्म एलोकेशन। ठीक है, एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? सो राइट नाउ वी आर जस्ट सेटिंग अप everything and soon everything will start coming into everything will start making sense। so अभी तक किसी को कोई भी डाउट यहां तक? एलोकेशन क्या होता है? Any doubts in the terminologies? I hope not. Okay, जब भी कोई भी डाउट हो so feel free to just write it in the chat। okay, all right, so this is what is allocation। तो हमने क्या देखा कि consumption bundle of person A and between two goods किस तरीके से हम लोग represent करेंगे और allocation का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला था कि हम लोग जब स्टार्टिंग में अपना एनालिसिस शुरू करेंगे तो हमने क्या बोला था कि हम लोग ये मानेंगे कि गुड जो है हमारे पास, दो गुड्स जो है हमारे पास, वो हमें उसके फिक्स्ड इंडाउमेंट्स मानेंगे। मतलब कहीं से भी जो दो गुड्स थे उनका कुछ कुछ एलोकेशन जो है दे दिया गया है पर्सन ए और पर्सन बी को। ठीक है, सो वी विल से कि initial endowment you can say,
इनिशियल इंडाउमेंट एलोकेशन वर्ड अब मैं यूज कर रही हूं, ठीक है। इसीलिए हमने एलोकेशन को डिफाइन कर दिया, क्योंकि अब एलोकेशन का मतलब है कि पर्सन ए और पर्सन बी कितना कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें पता होगा जब भी हम एलोकेशन की बात करेंगे। तो इनिशियल इंडाउमेंट या फिक्स्ड इंडाउमेंट एलोकेशन, उसका मतलब क्या है कि पर्सन ए और पर्सन बी के पास स्टार्टिंग में टू बिगिन विथ कितना अमाउंट ऑफ गुड 1 था और कितना अमाउंट ऑफ गुड 2 था, ठीक है। इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? What was the term that we usually used to use for representing endowments? कौन सा लेटर हम लोग यूज करते थे इंडाउमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? परफेक्ट, यस, एब्सोल्युटली। तो हम लोग W वर्ड को यूज करते थे, ठीक है। सो अगर मुझे इनिशियल इंडाउमेंट एलोकेशन को रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब क्या है? आई विल राइट कि पर्सन ए के पास फर्स्ट गुड का कितना अमाउंट है, पर्सन ए के पास सेकंड गुड का कितना अमाउंट है, दैट इज दी इंडाउमेंट फॉर पर्सन ए। सिमिलरली इंडाउमेंट फॉर पर्सन बी वुड बी कि पर्सन बी के पास फर्स्ट गुड कितना है और पर्सन बी के पास सेकंड गुड कितना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल इंडाउमेंट एलोकेशन या फिर फिक्स्ड इंडाउमेंट एलोकेशन, ठीक है। इसीलिए हमने एलोकेशन का डेफिनेशन देखा ताकि हम बार बार अब इस चीज को यूज कर सके, ठीक है। सो ये क्या हो गया मेरा इनिशियल इंडाउमेंट एलोकेशन, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर डेफिनेशन कमिंग इनटू पिक्चर, व्हिच इज व्हाट इज अ, कोई भी एक एलोकेशन है उसको फीजिबल एलोकेशन कब बोलेंगे, ठीक है। सो feasible allocation, एलोकेशन का बहुत सिंपल मतलब है कि जो दो गुड्स हैं वो दो इंसान के बीच में किस तरीके से एलोकेटेड हैं। इसको बहुत ही लाइक सिंबॉलिक टर्म्स में हमने इस तरीके से लिख दिया, बट दैट्स द जनरल मीनिंग ऑफ द टर्म, ठीक है। सो कोई भी एलोकेशन को आप फीजिबल कब बोलोगे? फीजिबल का मतलब क्या होता है? फीजिबल का मतलब क्या होता है? feasible का मतलब कि this is a possibility, so this is a feasible solution, this is a feasible idea, मतलब it seems possible, this is a possibility, ठीक है। feasible का इंग्लिश मीनिंग ये होता है। तो feasible allocation का मीनिंग क्या होगा? an allocation is feasible if जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड जो दो लोग कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ गुड दैट इज अवेलेबल। तो जो दो लोग हैं पर्सन ए और पर्सन बी, वो कोई भी गुड जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो उसी के बराबर है जितना वो गुड है, ठीक है। जितना भी मार्केट में वो गुड अवेलेबल है वो उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, तभी वो एलोकेशन फीजिबल है। क्योंकि अगर वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं देन व्हाट इज ऑलरेडी इन द मार्केट, इट्स नॉट अ फीजिबल थिंग, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि आप कितना कंज्यूम कर सकते हो? जितना मार्केट में अवेलेबल है, राइट। अगर हमारे पास सबके पास मिला के सिर्फ 10 एप्पल्स हैं तो हम मिला के टोटल कंजम्पशन कितना कर सकते हैं एप्पल्स का? ओनली 10। We can't in total consume 11 apples because we only have 10 apples with us, right? So that is where feasibility comes into picture. तो कोई भी allocation को feasible कब बोलते हैं? An allocation is feasible if the total amount of each good consumed is equal to the total amount of each good that is available. कि हमारा टोटल अमाउंट ऑफ गुड दैट इज कंज्यूम्ड दैट शुड बी इक्वल टू जितना भी गुड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो फीजिबल एलोकेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सो हमारी कंडीशन क्या है? कोई भी एलोकेशन फीजिबल होगा कब? जब टोटल अमाउंट ऑफ ईच गुड कंज्यूम्ड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ईच गुड अवेलेबल। तो पहले तो ये बताओ कि मुझे, मान लो कि मैं गुड 1 के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड 1 दैट इज अवेलेबल?
अगर ये आपका इनिशियल इंडाउमेंट है, ये कहीं से दो लोग थे ए और बी, उनको इतना अमाउंट दे दिया गया कहीं से भी, ठीक है, तो आपके पास मार्केट में, मार्केट मतलब ये दो लोग, ठीक है, मार्केट में कितना अमाउंट ऑफ गुड वन अवेलेबल है? गुड वन कितना मिला? इतना। गुड वन कितना मिला? इतना। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड वन? इट इज, yes, so it is WA1 plus WB1, right? This is the total amount of good one which is available in the market. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब हमारा ये वाला जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड वन है वो किसके बराबर होना चाहिए? टोटल अमाउंट ऑफ द गुड विच इज कंज्यूम्ड। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुड वन दैट ए इज कंज्यूमिंग? उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल यूज XA1, right? And what is the amount of good one that person B is consuming, which is XB1, right? So जब भी ये दो चीज बराबर होंगी, when these two things are equal, हम क्या बोलेंगे कि गुड वन जो है उसका कंजम्पशन इज इक्वल टू उसकी अवेलेबिलिटी, राइट? और फीजिबल एलोकेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि टोटल अमाउंट ऑफ ईच गुड consumed is equal to total amount of each good available, ठीक है? सो ये हमने गुड वन के लिए चेक कर लिया। अब सेम चीज हमें गुड टू के लिए करनी पड़ेगी, राइट? सो गुड टू के लिए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? What is the condition that we will have for good two? Come on, tell me. For good two, what is my total amount of available good in the market? WA2 plus WB2. WA2 plus WB2, and this is equals to, perfect, absolutely right, Manya. So XA2 plus XB2। सो ये दोनों कंडीशंस मिला के मुझे क्या बता रहे हैं कि मैंने गुड वन जितना कंज्यूम किया दैट इज इक्वल्स टू गुड वन जितना मार्केट में अवेलेबल है। मैंने गुड टू जितना कंज्यूम किया दैट इज इक्वल्स टू जितना गुड मार्केट में अवेलेबल है, गुड टू, ठीक है? व्हेन दीज टू कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड, तब हम कोई भी एलोकेशन को बोलते हैं कि दिस एलोकेशन इज फीजिबल, दिस एलोकेशन इज पॉसिबल, ठीक है? सो कोई भी एलोकेशन, whether it's a feasible allocation or not, ये चेक करने के लिए हमें क्या पता करना चाहिए कि this condition is satisfied or not, ठीक है? Is that fine? Is the definition clear? If it's clear, then I will ask you a question. If not, ask me right now. By gauging the silence of everybody, I'm assuming it's clear. So I have a question for you. Okay, my question is the initial endowment allocation a feasible allocation? क्या जो आपको स्टार्टिंग में इंडाउमेंट एलोकेशन मिला था, क्या वो एक फीजिबल एलोकेशन होता है या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। आप फीजिबल एलोकेशन क्या होता है वो तो समझ चुके हो, तो हमारा सवाल ये है कि ये जो इनिशियल एंडाउमेंट एलोकेशन है ये फीजिबल होता है या नहीं? तो इनिशियल एंडाउमेंट एलोकेशन होता है दिस वन। सो इज दिस एलोकेशन feasible or not? This is the question. Let me know if you have understood the question, and if you have, tell me the answer also. सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ?
Yes, ma'am. Okay. Take some time and think about it. तो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है कि ये जो एलोकेशन है, ये वाला एलोकेशन, क्या ये फीजिबल है? ठीक है, सो जस्ट सो दैट यू डोंट गेट मेस्ड अप विद ऑल द टर्मिनोलॉजीज, मान लेते हैं कि हमारा जो इंडाउमेंट था वो क्या था, 0,10. सो पर्सन ए को इतना मिला एंड पर्सन बी को कितना मिला, 10,0. ठीक है, एंड so this is your initial endowment allocation. ठीक है, अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या endowment allocation जो होता है क्या वो feasible होता है? This is the question. Feasible होने के लिए हमें क्या चेक करना होता है? Yes, Simran, you want to say something? Yes, ma'am. Okay, so answer, you are saying yes? Yes. Perfect, perfect. Okay. So we will need the reasoning also now. मैम वो इक्वेशन सैटिस्फाई तो करेगा. Exactly. तो बेसिकली feasible allocation की कंडीशन क्या है कि भाई आप जितना कंज्यूम कर रहे हो that should be equal to what is available in the market. जब आपको जो ऑलरेडी मिला हुआ था आप वही कंज्यूम कर रहे हो, so it is kind of obvious कि that is equal to what is available in the market. कि अगर आपका ये जो XA और XB है ये एक्चुअली क्या हो जाए कि WA और WB हो जाए, right? And this becomes W again and this becomes W again. Is the condition satisfied? Yes. So feasible मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आपको एक सेट ऑफ एप्पल्स और ऑरेंजेस दे दिए गए और आप बड़े लेजी हो गए थे और आपने बोला मुझे किसी के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी, जो मेरे को ऑलरेडी मिला हुआ है क्या मैं वही रख सकती हूँ? क्या ये एक फीजिबल ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है. आप कुछ एक्टिविटी मत करो, जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है उतने ही एप्पल उतने ही ऑरेंजेस लेके बैठे रहो. ये तो एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी है ही ना, लाइक ये तो एक पॉसिबिलिटी है ही कि डोंट डू एनी एक्शन. Doing nothing is a possibility. So hence it is a feasible allocation. ठीक है, and it will always be a feasible allocation. तो जो भी आपका endowment होता है that is always a feasible allocation. ठीक है guys, is that clear? Is it making sense? Why this makes sense? Why this should be true? Okay, Hitesh, is it clear? Okay, I am assuming it is clear. Okay. ओके सो बहुत सारे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आ गए थे. हमने शुरुआत की थी एजवर्थ बॉक्स के बारे में बात करने से. ठीक है, तो वी विल यूज ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न्ड जस्ट नाउ टू मेक एन एजवर्थ बॉक्स. ठीक है, ओके तो बेसिकली अब हमें अगर एजवर्थ बॉक्स बनाना है, ठीक है, एजवर्थ बॉक्स इट्स अ ग्राफिकल टूल. तो ग्राफिकल टूल है तो हमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप जब भी एजवर्थ बॉक्स बनाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू मेक अ बॉक्स. इट्स अ एजवर्थ बॉक्स, सो लिटरली मेक अ बॉक्स. ठीक है, ओके ऑलराइट, सो वी मेड अ बॉक्स. ओके, अब ये जो बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, ये जो है दिस साइड वी विल बी डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन ए. सो जो हमारा इंडिविजुअल ए है उसके पर्सपेक्टिव से हम चीजें करेंगे. ठीक है, इट्स लाइक माई आईज आर हियर. ठीक है, सो हमारी आंखें यहाँ पे हैं और हम इस एंगल से चीजों को देखेंगे. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए. ठीक है, ओके, एंड हमारा जो पर्सन बी है उसके पर्सपेक्टिव से हम सारी चीजें उस एज पे देखेंगे. ठीक है, सो
दिस इज पर्सन बी, और हमारी आई किस तरीके से देख रही है? सो इट्स लाइक आवर आईज आर हियर एंड वी आर लुकिंग लाइक दिस. सो हम एक्चुअली यहां से नहीं देख रहे हैं पर्सन बी को, पर्सन बी के पर्सपेक्टिव से. सो जो भी सारे डिसीजंस होंगे वो हम इस तरीके से देख रहे होंगे. इट विल मेक मोर सेंस थोड़े टाइम के बाद. ठीक है, ओके. ये जो बॉक्स है इसकी विड्थ जो है, इसकी लेंथ विड्थ ये सब जो होती है, ये किस तरीके से डिटरमिन होती है? सो यहां पे जो है हम लोग on the x side we have first good which is good 1. ठीक है, and on the y side we have good 2. ठीक है. सिमिलरली अब ये जो b पर्सन है, b पर्सन के लिए अगेन दिस इज गुड 1 एंड दिस इज गुड 2. ठीक है, सो दिस इज गुड 1 एंड दिस इज गुड 2. दिस इज गुड 2. ठीक है, so this is good 1, this is good 2, x side good 1 and this is good 2. ठीक है, ओके. तो ये जो लेंथ है या ये जो लेंथ है, इट्स अ रेक्टेंगल. सो ये जो लेंथ है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस लेंथ. सो ये जो गुड 1 जो है इसकी लेंथ कितनी होगी कि मार्केट में गुड 1 कितना अवेलेबल है. ठीक है, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड 1 which is available in the market, so what will be your answer? So width क्या है हमारे पास? Total amount of good 1 in the market. तो जो दो लोग थे ए और बी, उनके पास कितना कितना इंडाउमेंट था गुड 1 का? WA1 प्लस WB1. तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड 1 जो मार्केट में अवेलेबल है वो इतना है. तो ये वाली जो विड्थ है इसके लिए जो नंबर होगा दैट विल बी दिस नंबर. ठीक है, सो आपको एक बॉक्स बनाना है जिसकी विड्थ होगी WA1 प्लस WB1. सिमिलरली उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस बॉक्स? मार्केट में गुड 2 कितना अवेलेबल है. ठीक है, मार्केट में गुड 2 जितना अवेलेबल है दैट विल बी द विड्थ, दैट विल बी द हाइट ऑफ दिस बॉक्स. ठीक है, सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस बॉक्स? हाइट क्या होनी चाहिए? इट इज द अमाउंट ऑफ गुड 2 in the market. Whenever I am using the term market, that just means market का मतलब होता है कि कितने जो भी लोग हैं वो आपस में like who are all the players who are participating. So यहाँ पे हम सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग we will just restrict our discussion to 2 people. ठीक है, so what is the total amount of good 2 available in the market? It's similar to what we did previously. So again, it will be WA2 plus WB2. ठीक है, so ये जो बॉक्स है उसकी हाइट हो जाएगी this much, WA2 plus WB2, और उसकी विड्थ जो है वो इतनी हो जाएगी. ठीक है, so जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमने देखा था, so I gave you an example like this, right? सो अब मुझे ये बताओ इस बॉक्स की विड्थ क्या होगी अगर हमारे इनिशियल एंडाउमेंट्स ये हैं. तो बॉक्स की विड्थ क्या होनी चाहिए? विड्थ एंड हाइट. सो इफ दिस इज माय इनिशियल एलोकेशन, व्हाट शुड बी द विड्थ एंड हाइट ऑफ माय एजवर्थ बॉक्स? So it is going to be 10,10, right? Okay. तो ये जो है ये बॉक्स हमने बना लिया. इस बॉक्स की विड्थ पता चल गई, इसकी हाइट पता चल गई. हम देख रहे हैं कि इस साइड से हम पर्सन ए के बारे में सारे डिस्कशंस करेंगे और इस साइड से हम सारे पर्सन बी के डिस्कशंस करेंगे और हमारा आई पॉइंट होगा यहाँ पे. सो हम पर्सन ए के लिए इस तरफ से चीजें देख रहे होंगे, पर्सन बी के लिए हम इस तरफ से चीजें देख रहे होंगे. ठीक है, ओके. सो
All right. So, okay. So these are the two things that we have to make sure. उसके अलावा जो पर्सन ए के चॉइसेस हैं वो हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? लोअर लेफ्ट साइड से, ठीक है, एंड अपर राइट कॉर्नर से पर्सन बी के चॉइसेस को देख रहे हैं, अपर राइट कॉर्नर से, ठीक है. सो अपर राइट कॉर्नर एंड लोअर लेफ्ट कॉर्नर से पर्सन ए एंड अपर राइट कॉर्नर से पर्सन बी के लिए चीजों को देख रहे हैं, ठीक है. अब मुझे ये बताओ, आप मुझे, अब मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है. सो मान लेते हैं कि कोई भी मैंने एक पॉइंट पिक किया. सो व्हाट इज दिस विड्थ? फर्स्ट WA1 प्लस WB1 and what is this height? WA2 plus WB2, ठीक है. I just pointed out a point here, let's say this point, ठीक है. तो ये जो मैंने मान लो एक पॉइंट यहाँ पे जो है पुट अप किया, ठीक है. तो ये एक पॉइंट है विच इज टेलिंग मी कि मेरा पर्सन ए जो है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, पर्सन बी कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज टेलिंग मी अबाउट अ पर्टिकुलर कंजम्पशन बंडल, ठीक है. सो मान लेते हैं कि this is, let's say this is my endowment, let's say. चलो इसको ना ऐसे नहीं करते हैं, let me make things simple for you. So अभी जो है आप क्या assume करो कि this is not 10-10, this is 5,5, ठीक है. अगर मेरा इनिशियल इंडाउमेंट 5,5 है, ठीक है, तो मेरा एजवर्थ बॉक्स जो बनेगा वो कैसा होगा? जिसकी विड्थ होगी 10, राइट, और जिसकी हाइट जो होगी वो भी होगी 10, ठीक है. सो अगर मुझे मेरा इनिशियल इंडाउमेंट जो है रिप्रेजेंट करना है तो वो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी? देखो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन ए आई हैव टू सी कि मेरे इनिशियल लेवल पे I had 5 units of good A and 5 units of good B, ठीक है. So ये जो point है, this is somewhere at the mid. So this is 5, this is 5, this is 5, this is 5. That means देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? पर्सन A जो है 5 units of good 1 कंज्यूम कर रहा है and 5 units of good 2 कंज्यूम कर रहा है, ठीक है. So 5 units of good 1, 5 units of good 2. ये पर्सन A के पर्सपेक्टिव से हमने देखा. अब पर्सन बी के पर्सपेक्टिव से अगर हमें चीजें करनी है तो वी विल सी फ्रॉम दिस साइड, ठीक है. सिंस दिस इज 5 एंड दिस इंटायर थिंग इज 10, ये वाली चीज कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड दिस बी? दिस शुड ऑल्सो बी 5. तो हमने क्या देखा? पर्सन बी जो गुड 1 कंज्यूम कर रहा है वो भी 5 है, ठीक है. इस तरीके से हम लोग निकालते हैं. सिमिलरली अब जो पर्सन ए है वो सेकंड गुड को 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है एंड टोटल अमाउंट ऑफ गुड 2 मेरे पास 10 है, ठीक है. तो पर्सन बी जो है यहां से यहां तक गुड 2 कितना कंज्यूम कर रहा होगा? सो इफ पर्सन ए इज कंज्यूमिंग 5 यूनिट्स, उसका एंडाउमेंट 5 यूनिट्स था, टोटल मेरे पास 10 यूनिट्स था, तो मैं पर्सन बी के पर्सपेक्टिव से देख रही हूं तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि दैट पर्सन इज ऑल्सो हैविंग एन एंडाउमेंट ऑफ 5, ठीक है. सो इस तरीके से हम पर्सन ए के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं और पर्सन बी के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं, ठीक है. सो फ्रॉम दिस साइड x यूनिट्स, फ्रॉम दिस साइड b के गुड 1, ठीक है. सो बी पर्सन ए के लिए गुड 1 फ्रॉम दिस साइड, पर्सन बी के लिए गुड 1 फ्रॉम दिस साइड, पर्सन ए के लिए गुड 2 फ्रॉम दिस साइड, पर्सन बी के लिए गुड 2 फ्रॉम दिस साइड. इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं. दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड M, विच इज नथिंग बट माई इनिशियल इंडाउमेंट. ठीक है. तो मैंने क्या किया, मेरे एक इंडाउमेंट एलोकेशन को, सो हमने एजवर्थ बॉक्स की डेफिनेशन देते टाइम क्या बोला था? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टूल टू हेल्प अस यू नो in terms of providing any allocation
एलोकेशन को रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है और प्रेफरेंसेस को भी रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। सो एलोकेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव फॉर पर्सन बी एंड दिस पर्सपेक्टिव फ्रॉम पर्सन ए, ठीक है। सो अब मुझे ये बताओ कि मान लो मुझे यू नो लेट्स से आई हैव टू डू 2,8 एंड 8,2, ये कंजम्पशन हो रहा है बाय पर्सन ए एंड पर्सन बी। मुझे अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो एजवर्थ बॉक्स में तो वेयर शुड दैट बी? सो ए पर्सन गुड 1 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है एंड गुड 2 8 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो वेयर शुड आई गो, लाइक विच बॉक्स शुड आई गो इन? फर्स्ट बॉक्स, so okay, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Where should I go? This is first, second, third, fourth. कौन से quadrant में मेरा ये वाला point lie करेगा? First, second, third और fourth. Which one? Second, ma'am. Second, क्योंकि क्या हो रहा है देखो, पर्सन ए 2 यूनिट्स ऑफ गुड 1 कंज्यूम करेगा, सो 1 2, ठीक है। एंड देन गुड 2 जो है वो 8 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, मतलब 5 से ज्यादा, राइट। सो समवेयर हियर, अब यही वाला पॉइंट क्या मेरे गुड जो पर्सन बी है उसके कंजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जब आपका कंजम्पशन यहाँ पे गुड 1 का 2 यूनिट्स है और टोटल आपका 10 यूनिट्स है, तो ये वाला जो भी कंजम्पशन होगा वो कितना होगा? 8 यूनिट्स। एंड सिंस दिस वाज 8 यूनिट्स, दिस बिकम्स 2 यूनिट्स। तो आप जो है अपना एलोकेशन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी एलोकेशन को एजवर्थ बॉक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो अब आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट थिंग, कैन यू रिप्रेजेंट this allocation in the Edgeworth box? So my question would be this: A, B, 2,8 and 9,2. Can you represent this in the Edgeworth box? Okay, so why not? ए के लिए डिफरेंट पॉइंट होगा और बी के लिए डिफरेंट। Sorry, A के लिए? अब डिफरेंट पॉइंट होगा और बी के लिए भी डिफरेंट होगा। So basically, yeah, so person A 2 units consume कर रहा है और मुझे पता है कि मेरा ये बॉक्स का जो विड्थ है वो तो सिर्फ 10 है, तो मैक्सिमम जो मेरा पर्सन बी कंज्यूम कर सकता है वो 8 है इन दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम में तो मेरे पास, मैं ये वाली चीज को प्लॉट कर ही नहीं सकती, राइट। सिमरन सेइंग गुड 1 कंजम्पशन इज मोर देन अवेलेबिलिटी, सो नो, यस एब्सोल्युटली। सो व्हाट डज दिस टेल मी कि ये जो एजवर्थ बॉक्स है इसमें ना एक कंडीशन है, वो ये है कि ये सिर्फ सारे फीजिबल एलोकेशंस को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। व्हाई? जस्ट बाय द नेचर ऑफ इट, क्योंकि आपने ये जो बॉक्स है इसकी विड्थ और हाइट उतनी ही बनाई है जितना गुड 1 और गुड 2 अवेलेबल है। तो कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट टच भी करते हो ना इस डायग्राम में, सो वो अपने आप में एक फीजिबल एलोकेशन बन जाता है, सच दैट टोटल कंजम्पशन बिकम्स इक्वल टू टोटल अवेलेबिलिटी। सो this Edgeworth box, any point on or inside this Edgeworth box is a feasible allocation. तो आप हमेशा एक feasible allocation को ही represent कर सकते हो inside an Edgeworth box and not any general point, ठीक है। So we can't represent it because this is not feasible. क्यों? क्योंकि यहाँ पे good 1 की जो कंजम्पशन है वो 11 हो गई, बट मेरे पास मार्केट में तो गुड 1 सिर्फ 10 यूनिट्स ही है, ठीक है, इसीलिए वी कांट रिप्रेजेंट इट, ठीक है। Is that fine? So we need to make sure that the points in the Edgeworth box are all
feasible allocation. ठीक है, तो एजवर्थ बॉक्स में सारे के सारे feasible allocations को हम लोग represent कर सकते हैं. ठीक है, सो ये तो हो गया फर्स्ट चीज which is representing different allocations कि पर्सन ए कितना कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर बी कितना कंज्यूम करेगा, ये सब हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब दूसरी चीज जो आपने बंडल दिया था अभी 2, 8 और 9, 2 ये आपने एंडाउमेंट दिया था या कंजम्पशन बंडल दिया था? कंजम्पशन बंडल. क्योंकि इंडाउमेंट अगर मैं बोलती कि ये इंडाउमेंट है तो मेरा एजवर्थ बॉक्स के जो डायमेंशंस है वो बदल जाते, राइट, 11 और 10 हो जाते. ठीक है, बट हम लोग ये इंडाउमेंट लेवल के लिए क्या ये कंजम्पशन फीजिबल कंजम्पशन बंडल है वो बात कर रहे थे. ठीक है, ओके, सो ऑल राइट, सो हमने ये तो बात कर ली कि एलोकेशंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बट अब प्रेफरेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है एजवर्थ बॉक्स. सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जब हम लोग यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बात करते थे तो हम लोग क्या बोलते थे कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच टेल्स अस कि किस डायरेक्शन में यूटिलिटी इंक्रीज होती है. ठीक है, सो दिस इज गुड 1, दिस इज गुड 2. तो ये तो वही वाला केस हो गया कि एक इंडिविजुअल था, उसके लिए गुड 1 और गुड 2 हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाते थे और उसके लिए इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट कर देते थे. तो मेरे पास तो पूरा ही सेम एनालिसिस है, तो मैं अपने इंडिफरेंस कर्व मान लो ये दोनों जो गुड्स हैं इसके लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, राइट, आई कैन डू दैट, यस और नो. सो पर्सन ए जो है उसके लिए मैं इंडिफरेंस कर्व्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. तो इट्स लाइक आप पर्सन बी को भूल जाओ और सिर्फ पर्सन ए के बारे में सोचो और तब आपके इंडिफरेंस कर्व्स कैसे होंगे आप उस तरीके से प्लॉट कर दो, राइट, आई कैन डू दैट. इज इट मेकिंग सेंस, राइट? अब सिमिलरली अब पर्सन बी के प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करना है तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो दूसरे डायरेक्शन में देख के इसके लिए इंडिफरेंस कर्व्स प्लॉट कर दो. तो क्या हो गया, एक ही डायग्राम में हमने दो इंडिफरेंस कर्व, दो लोगों के प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर लिया, दोनों लोगों के प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर लिया. ठीक है, so it's like let me just try and rotate it. ठीक है, let me just try to rotate this page and so okay yeah, so it's like this now. ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे पर्सन पहले हमारे पास यहाँ पे पर्सन ए था, अब इट्स हम पर्सन बी के लिए इस तरीके से देख रहे हैं. ठीक है, सो पर्सन बी के लिए वाई एक्सिस ये है, पर्सन बी के लिए एक्स एक्सिस ये है. ठीक है, अब पर्सन ए को भूल जाओ. अब पर्सन बी के लिए अगर आपको प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करना है या ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूजुअल मेथड विच इज आपके पास दो गुड्स हैं, वो दोनों के लिए अगर आपको इंडिफरेंस कर्व या ये सब प्लॉट करना है तो आप इजीली कर सकते हो कि मान लो इसके प्रेफरेंसेस पर्सन बी के इस तरीके से हैं तो आपने अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स प्लॉट कर दिए. ठीक है, सो बेसिकली बाय डूइंग दिस व्हाट डिड वी डू, हमने दोनों लोगों के प्रेफरेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर दिया और डिफरेंट एलोकेशंस जो पॉसिबल हैं वो सब एक ही डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, सो वी लुक फॉर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू पर्सन बी इन दिस मैनर. ठीक है, कि पर्सन बी का वाई एक्सिस ये है, पर्सन बी का एक्स एक्सिस ये है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू. So I have to rotate it now. Okay, ठीक है, so इस तरीके से this is the Edgeworth box, which is a tool, it's a graphical tool which lets us represent allocations and preferences of two people in the same diagram. ठीक है guys, is that fine? Is it making sense? सो feasible allocation और preferences को represent करने का same diagram में, it's a ingenious way to do that. ठीक है, is that fine? Any doubts till this point? Okay, so Manya is fine.
Simran, Hitesh, Himanshu, guys, is that fine? Okay. So guys, I think that's it for today's lecture. अब हम लोग जो हमारा अगला lecture होगा, which will be tomorrow same time, हम लोग ये बात इसके बारे में बात करेंगे कि how do these people trade? How does person A and person B will trade with each other? क्या जब वो ट्रेड करेंगे तो क्या वो दोनों बेटर सिचुएशन में जा पाएंगे? ठीक है, ये सब तरीके के डिस्कशंस करेंगे. व्हाट इज द एफिशिएंट एलोकेशन? वो कौन सा एलोकेशन है जहां पे दोनों लोग एक बेटर सिचुएशन में जा रहे हैं? इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होगा परेटो ऑप्टिमैलिटी. वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, so I think that's it from my side for today's lecture in terms of concepts. If you have any doubts related to today's discussion, let me know. Anything from starting to end, let me know if there are any doubts. Okay, if not, then yeah, let me stop the recording.